Spirituality can be practiced by anybody while being a doctor, engineer, a CA, or this or that, because this knowledge is more about yourself. So if you have a set of sadhana to do every day, and if you listen to satsang properly, and you have understood all the secrets about Atma and Paramatma and all that, then physically, whatever is your duty you choose to do, right, you can do that, not a problem. Spirituality doesn't take you away from your job or work. अर्जुन ने जब भगवान से ज्ञान लिया तो उसके बाद बाबा जी बन गया था? लंबी लंबी जटा रख के ऋषिकेश में कहीं बैठ गया था? नहीं, वो राजकुमार रहे, वो काम करते रहे, वो युद्ध लड़ते रहे, क्योंकि क्षत्रिय थे ना, तो देश की रक्षा सुरक्षा उनके जिम्मे है। ऐसे ही आज मेरे बहुत से शिष्य आर्मी में हैं, बहुत से नेवी में हैं, बहुत से जो है एयरफोर्स में है। वो जब उनको समय मिलता है, उनकी ड्यूटी ऐसी होती, पर उनको जब समय मिलता है वो प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योग निद्रा करते हैं, मुझे सुनते रहते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हमारे कितने शिष्य, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई प्रोफेसर है, कोई दुकान चलाता है, कोई रेडी चलाता है। हैदराबाद में मेरे कुछ शिष्य है, वो डोसा का रेडी लगाते, यम, उसके जैसा बढ़िया कोई बना नहीं सकता है, इतना बढ़िया वो बनाते। लास्ट जब मैं वहां पर थी तो उनसे उनकी इच्छा थी कि हम आपको खिलाना चाहते हैं। मैं क्या, तो तुम कहाँ लगाते हो? हम वहां आते। बोले नहीं, वहां आप कहाँ आएंगे, आप जहाँ हैं हम वहाँ आएंगे। तो वो अपनी पूरी रेडी मेरे पास वहाँ ले आए थे। इतनी बढ़िया इडली और डोसे बनाए उन्होंने, क्या बढ़िया बढ़िया सामान खिलाया उन्होंने। और वहीं पे ना वो म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, उसमें वो हमारा भजन चलाते रहते, गाते रहते, जो ग्राहक आते उनको भी सुनाते रहते, सुन 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 गुरु माँ का नया आया, सुन। अब वो आया डोसा खाने वो डोसा खाने आया, वो इडली खाने आया, तो बोले नहीं नहीं सुन, कान से सुन, सत्संग सुन, भजन सुन, कीर्तन सुन। और वो अपनी रेडी चला रहे। तुम रेडी चलाओ कि क्लिनिक चलाओ, लॉयर का ऑफिस चलाओ कि सीए का ऑफिस चलाओ, तुम सब कुछ कर सकते हो। आध्यात्म तुमको उससे काटता नहीं है और अलग नहीं करता। वेदांता doesn't teaches you to be an escapist. Vedanta teaches you to be in this world very much, because as such world is an illusion. What can it harm you, and in which way it can harm you? Once you realize the truth, actually this world becomes such a beautiful place, because you are no more separate from anybody. One time, a man went to Mahatma. Mahatma Ji was sitting by Ganges, meditating. A very rich man came in. He said, Swamiji, you are so great. I wish to offer you this Rolex watch. Swamiji had no clue what Rolex, what the hell that means, or what's the price. So he gave that watch and he said, please wear it. Swamiji wore it. That person went away. 3-4 days passed, another man came. And I said, Swamiji, you are wearing Rolex. So, I said, what will you do? So, why you ask? So, I don't have a watch. Can you give me the watch? Swamiji said, take it. Now, you might want to know the address of this Swamiji, hai na? So, he gave away that watch. So, man went away. And after a few weeks, a thief saw, he Googled it. Smart. He Googled it. He got to know the price. So when he was sleeping, he went into his hut and stole that watch and wore the watch and went out to show it off. Like you do. You get something new, you want to show it off. He goes out to show. And a policeman saw it. How come you are wearing this watch? And then, the Indian police sometimes do some service. Left cheek, right cheek. Left butt, right butt.
And then he spilled out the truth. He said, I stole it from so and so. He said, let's go. He went to that person, how come you have this watch? He said, I went to that Swamiji and that I asked this watch and he gave it like a prasad to me. He said, you are lying, come with me. So this policeman took this man to Swamiji back again and slapped a few times more. And he said, how dare you take this watch from Swamiji? Take it off. Give it to Swamiji back. And Swamiji said, okay, you are back. Because a realized person knows what belongs to me will come to me. What I am not destined to have, it will not remain with me. Either hook or by crook, somebody will take it away. And he said, okay, you are back. Okay, back. Policeman said, please Swamiji, wear it. These people are not good people. Oh, he said, but see, because of this watch, these gentlemen were beaten up. Not a good thing. So, you take this watch. Policeman said, why are you putting me in dangerous situation? I don't wish to have it. But then this Swami again gave it away to somebody. I don't know then what happened. So I don't know what happened. So the point is, the spirituality doesn't take you away from your worldly. There's nothing wrong in this world. But what is wrong is when you have very strong attachment. वही बात हो जाए ना, मेरे ही रहना तुम, लिख के दे दो तुम मेरी हो. क्या है ना वो गीत, कह दो क्या है, क्या कह दो मुझे कि तुम हो मेरी वरना वरना जीना नहीं मुझे है मरना. गति जाम मार फिर. यहाँ मेरा कोई नहीं रहता है, आज नहीं कल ठेंगा दिखा जाएंगे. मेला है ना दुनिया, इस मेले में तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, रिश्तेदार दोस्त, ठहरेंगे नहीं साथ में. और मेले का मजा यही है कि एक जगह रुको मत, घूमते रहो देखते रहो, घूमते रहो देखते रहो, घूमते रहो देखते रहो, घूमते रहो देखते रहो. हैं एक भाई, ये ना यहाँ अंग्रेजी लिखा करो, यहाँ हिंदी लिखा करो, पर अंग्रेजी के फॉन्ट्स में ये जो हिंदी लिखते हो ना, उफ, कौन है खुशमन? खुशमन बेटा, हमें जरा भी खुशी नहीं हुई इस लेटर को देख करके. लिखते हैं, जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल क्या हमें इसी जन्म में ही मिलता है? क्या उन्हें अगले जन्म में वो भोगना पड़ता है? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है, क्या होता है? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? जब हुआ वो छोड़ो, ये न सोचो. और अब ऑन सीरियस नोट, जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म ऐसे समझिए जैसे एक चिप बन के तुम्हारे अंदर फिट हो जाती है. जैसे पुलिस अगर किसी को ढूंढना चाहे तो उसके फोन का वो जो सिम कार्ड है वो कहाँ कहाँ गया वो उसको ढूंढ लेंगे, राइट? जैसे वो चिप तो शायद कोई फेंक दे, नहीं ले ले, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन चिप के साथ उस व्यक्ति को ढूंढना आसान है. ऐसे ही तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म एक चिप की तरह तुम्हारे ही मन में छाप बन के बैठ जाते हैं. इसलिए कोई और नहीं, वो तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देता है.
या तुम्हारा कर्म ही तुमको आनंद देता है। एक तुम्हें मजेदार बात सुनाती हूँ। मेरे एक मित्र थे स्वामी परम प्रकाश, हरिद्वार में रहते थे, बड़े अच्छे, हम बचपन से उनको देखते थे, बड़े प्यारे, बहुत ही प्यारे, अपने गुरु की इतनी सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, हरिद्वार में उन्होंने एक बूढ़े साधु को बुखार में तपते हुए बेहोश पाया। वो उनको उठा के अपने आश्रम में ले आए, अपने गुरुजी के आश्रम में ले आए। बड़ी सेवा करी, दवाई, इंजेक्शन, खाना पीना, नहलाना धोना, सब कुछ उन्होंने किया। अब ये जो बूढ़ा महात्मा बीमार मिला था ना, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा उनका आश्रम अमेरिका में था, कैलिफोर्निया में। तो फिर जब वो ठीक हो गए, उनके शिष्य सब लोग आ गए दिल्ली मुंबई से, और तो वो कहे स्वामी परम से कि तुम ना मेरे ही साथ चलो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई साधु नहीं देखा, इतना तुमने मेरा ख्याल किया, तुम्हें तो मालूम भी नहीं मैं कौन हूँ या कौन नहीं, पर इतनी सेवा तुमने की, मेरा तो जान तेरी वजह से बची है। परम बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो भारत में ही रहूँगा, मेरे को नहीं जाना अमेरिका। खैर वो चले गए। कोई 6-8 महीने बाद स्वामी परम को फोन आया कि वो जो स्वामी जी थे उनकी मृत्यु हो गई है, और अपनी विल में उन्होंने ये कहा कि 50 लाख रुपया स्वामी परम को भेंट दीजिए, पहले आग्रह करिए कि वो यहाँ आ जाएं और इस आश्रम को संभाल लें, और अगर वो यहाँ ना आए तो 50 लाख रुपया उनको दिया जाए। तो उनके कुछ लोग फिर आ गए स्वामी परम के पास, तो बोले ना ना ना, मैं तो नहीं लूँगा। बोले क्यों? बोले जब भगवान देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, 50 लाख रुपया देखो छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, पर जब वापिस लेंगे तो मेरी खोपड़ी फाड़ के लेंगे। अब 50 लाख रुपया मैं मेरे पास रखूंगा, यहाँ तहाँ सबको पता चल गया, कोई ना कोई आ जाएगा, वो एक मारेगा गंडासी मेरे को और ये पैसे सब ले जाएगा, तो मेरी जान का दुश्मन मत बनो, हम तो ये पैसे नहीं लेंगे आपसे, तो ये ले जाओ, हम नहीं लेंगे। तो उनको बाकी कुछ साधुओं ने समझाया कि देखो तुम पास मत रखो, तुम इसको आगे दान दे दो। बोले हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने पैसे इधर से लिए और इधर वही सारा पैसा उन्होंने दान कर दिया। मैं बोले मैं मेरे नाम पे नहीं रखूंगा, मैं खोपड़ी नहीं फड़वानी है अपनी। तो अपनी ऐसे ना हाथ फेर के कहते थे बड़ी प्यारी है इसको तकलीफ नहीं देनी है, तो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि उन्होंने एक बूढ़े बीमार साधु की सेवा प्यार से, करुणा से, मानवता के नाम पे किया। वो बंदा चला जाता है और वो उनके उस कर्म के लिए उनको कुछ देना चाहते हैं, पर वो इतने फक्कड़ और मस्त थे, लेकिन हमको नहीं चाहिए। अब जब कोई अपने इस प्रकार आए हुए धन को भी इनकार कर देता है, ये उनका एक और श्रेष्ठ कर्म हो गया। अब इस कर्म का फल कोई धर्मराज नहीं देगा, वो छिप उसके अपने ही मन में यहीं पे फिट हो जाती है। तो आपको दंड भी आपका मन देता है और आपको पुरस्कार भी आपका ही मन देता है। इसलिए कुछ बुरा करने से पहले ये जान लेना, सबसे छुपा लोगे, खुद से कैसे छुपाओगे? What is karma? Karma is the energy unfolded by you, released by you, and this energy will come multiplied by tens and hundreds of times back to you. So be very watchful. Be very watchful of what you do. Actions through body, actions through your speech, and action through your mind, what you think. All these things will matter. ना हम लोग कोई भी ना दुखी नहीं होना चाहते, पर कभी कभी काम हम ऐसे कर लेते हैं कि दुख आता ही आता है। ज्योतिष शास्त्र में हम ये कहते हैं कि जब कोई दुख आए तो जानना तुम्हारा ही कोई पाप कर्म था, और जब कोई सुख आए तो जानना तुम्हारा ही कोई पुण्य कर्म था। इसलिए भारत में इस चीज पे बड़ा इंसिस्ट करते हैं, रोज भगवान नाम स्मरण करो, तुम्हारे पाप से छुटकारा होगा। रोज ईश्वर नाम आराधना करो, संतों की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, आश्रम में जाके अपने हाथ से सेवा करो,
अपने से जो छोटे हैं, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो असहाय है, उनकी मदद करो। पर ऐसे धौंस मत जमाओ, याद रखियो चाय पिलाई थी। ये सबसे बुरी बात होती, करके जताना। कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए जैसे सूर्य करता है, सबको रोशनी देता है, पर सूर्य बिल भेजता है क्या? और अगर सूरज बिल भेजने लग जाए ना तो हम सब तो मर ही जाएंगे। सूर्य दे रहा है, वापसी कुछ नहीं चाह रहा है। ऐसे ही हम शुभ कर्म करते रहे, सेवा करते, सत्य पालन करते, अहिंसा का पालन करते, जीवन को अच्छा बनाने की चेष्टा करते हैं, तो फिर क्या है, धीरे धीरे यही पुण्य कर्म, अभी आपने खुद से कुछ नहीं किया, पर मेरा ये बहुत मानना है, जानना है, आप सब जो यहां पहुंचे हो ना, ये आपके पुण्य कर्म है जो आपको यहां लाए। ये आपके माता पिता के पुण्य कर्म है जो आपको यहां लाए हैं। जैसे ये बालक जो कोने में बैठा, नाम बोलो, हाँ, आरव, हमसे सत्संग कब सुनती थी? 96, 95। हम दिल्ली में आते थे सत्संग करने, तो इसकी माँ, इसकी नानी, इसकी सब मौसियाँ, तो मतलब वो खुद जैसे आप हैं अभी छोटी उम्र की, तो वो ये तब आते थे हमें सुनने के लिए। फिर हमारे ही सामने उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, और अभी उनके जो संतानें हैं उसमें ये जो है ये ज़्यादा पास आता है, इसका जो भाई है वो भी उतना नहीं आता। क्यों? जिस दिन उसके पुण्य कर्म जागृत होंगे वो भी आएगा। पुण्य लाते हैं आपको यहाँ पर। तो माँ का किया, नानी का किया सेवा, उनका किया जप, उनका किया दान, तो उसका फल आगे संतान को भी मिलता है। तो ऐसे आपके माता पिता धर्मपरायण हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छा होने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे प्रेम है, मोहब्बत है, इसलिए तो आपको उन्होंने प्रेरणा दी कि जाओ, वहाँ पर जाओ। हो सकता है हर शिविर में ऐसा होता है, कुछ ऐसे बच्चे आते जो धकेले गए होते, मम्मियाँ बड़ी बड़ी सख्त होती हैं ना, तो वो धकेलती, जाना पड़ेगा, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे टांगे तोड़ दोगे तो जाएगा कैसे? जाना पड़ेगा आश्रम। और फिर एक दिन थोड़ा मुश्किल लगता है कईयों को, क्योंकि नया वातावरण, अब तुम घर में कहाँ खाते होगे ना इतने बजे। अब हम लोग यहाँ आश्रम में 9 बजे खाते हैं सुबह, फिर शाम को खाते हैं 5:15 बजे, बीच में कुछ खाते नहीं, पर आप सबके लिए 3 समय भोजन बनता है। और जैसे अभी यहाँ से छूटूंगी मैं, तो सीधे जाके अपना थोड़ा सा भोजन करके आरती में मैं पहुँच जाऊंगी आपके पास। अब आप लोगों को तो आदत नहीं, 8 बजे 9 बजे लेट खाते हैं आप लोग, तो एक नया एनवायरनमेंट, तो एक दिन थोड़ा मुश्किल लगता है कईयों को, पर फिर धीरे धीरे अच्छा लगता है। हाँ, वैसे जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो भाग जाएंगे। अगर कोई भाग जाएगा तो मुझे क्या पता। वैसे वेरी इंटरेस्टिंग, पता नहीं कौन बच्चा था, लड़का कोई, बड़ा दुखी से बैठा हुआ था बगीचे में। हमारे एक शिष्य ने पूछा, ये तो ऐसे क्यों बैठा है? बोले मेरी मम्मी फोन करके कहती तू कहाँ है? बोले आश्रम में तो हूं। तो तेरे फोटो क्यों नहीं दिखे फेसबुक और यूट्यूब पे? तू आश्रम में है ही नहीं, क्योंकि जितने फोटो आए उसमें तू कहीं नहीं था। वो कह रहा मैं कैसे बताऊं मैं यही हूं। तो वो बालक को आइडेंटिफाई करेंगे, और आज ये हमारे फोटो वाले जो भी है ना, उसकी भैया फोटो जरूर निकाल देना, नहीं तो उसकी माँ फिर गाली देगी उसको।